आज हम लोग कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्लास 12th केमिस्ट्री। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन क्लोरोइथेन। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के क्लोरीन एटम में, वो इंटरेक्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंड जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, लाइक इन द क्लोरोबेंजीन दैट वुड बी द sp2 हाइब्रिडाइज एंड इन क्लोरोइथेन दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन के कारण भी अगर क्लोरोबेंजीन जो हो जाएगा वो अंडरगो करेगा SN1 मैकेनिज्म, सो उसको फिनाइल कैटायन की नीड होगी। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज हाईली अनस्टेबल एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑल्सो। Electronic repulsion, the benzene ring in the chlorobenzene in the region of the high electron density due to the delocalized pi electron cloud. Since the nucleophiles are the electron rich species, they experience a strong electrostatic repulsion when attempting to approach the electron dense aromatic ring. Yeah. Next question is, what happens when the chloroethane is treated with the alcoholic KOH? See, when chloroethane is treated with the alcoholic KOH, so it undergoes a dehydrohalogenation reaction to form the ethene CH3CH2Cl plus KOH. In the presence of the heat, it will form CH2 double bond CH2 plus KCl plus H2O gas. So in this reaction, the alcoholic KOH acts as a strong base. It abstracts the proton H plus from the beta carbon, while a chloride ion leaves from the alpha carbon, establishing a carbon-carbon double bond. Correct? Next question कह रहा है कि why does the para dichlorobenzene have a higher melting point than ortho dichlorobenzene? So this is due to the symmetry and packing. सिमिट्री और पैकिंग के कारण, yes, and due to intermolecular forces and due to energy requirement. Symmetry and packing, like the para isomer is highly symmetrical and linear compared to the ortho isomer. Correct. Intermolecular forces, like because the molecules are packed more tightly and close in the crystal lattice, so intermolecular forces of the attraction operate more effectively. Breaking a closely packed stable crystal lattice require a highly significant high amount of the thermal energy. Next question कह रहा है, why are the aryl halide less reactive than alkyl halide towards a nucleophilic substitution? तो एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, क्योंकि एराइल हैलाइड के अंदर जो लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का हेलोजन एटम पे, वो कॉन्जुगेशन में होगा विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग एंड दिस डीलोकलाइजेशन डेवलप द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन, लाइक द एराइल हैलाइड is like sp2 hybridized and the alkyl halide is like sp3 hybridized. Correct. Instability of the phenyl cation, if an aryl halide were to undergo a unimolecular like SN1 reaction, so self ionization would have to be the phenyl cation. And next is again the electronic repulsion. Correct. Next question कहता है, what are Grignard reagent and how they are prepared from haloalkane? सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है विद द जनरल फार्मूला RMgX है। R एक एल्काइल, एराइल और एल्केनाइल ग्रुप है एंड X इज़ द हेलोजन। करेक्ट. दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव. यस. सो बॉन्ड का करेक्टर क्या है? द कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है वो हाईली पोलर होता है और कोवलेंट होता है. रिएक्टिविटी द कार्बन एटम बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड द स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट इज लाइक RX प्लस Mg जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर के अंदर क्या बनेगा? दैट वुड बी RMgX. Grignard reagent are prepared by reacting a haloalkane with the magnesium metal turnings. यस. सो इसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है? ड्राई ईथर चाहिए होता है, इसे मॉइस्चर फ्री रखना होता है और ये इंस्टेंटली जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके RH बना लेता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या प्रोडक्ट होगा वुड्स रिएक्शन का ऑफ द मिथाइल ब्रोमाइड? सी CH3CH3. ये जो वुड्स रिएक्शन है वो एक कपलिंग है किसकी? एल्काइल हैलाइड की मॉलिक्यूल की इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर. यस. लाइक CH3Br के अंदर अगर हम Na को डालेंगे ड्राई ईथर के अंदर, सो इट विल फॉर्म CH3CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr.
करेक्ट। सो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो सोडियम का जो मेटल है वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म द सोडियम केटायन, एंड डाइमराइजेशन हो जाएगा, जो कि दो मिथाइल के फ्री रेडिकल्स है वो कंबाइन करके एक स्टेबल कोवेलेंट का बॉन्ड बनाते हैं इथेन का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कह रहा है क्या रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। सी दिस लाइक C6H5Cl जो है अगर वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द 623 एंड 300 atm, so that would be pressure में, so that would be C6H5ONa plus NaCl plus H2O, correct, and C6H5ONa plus HCl क्या बनाएगा C6H5OH plus NaCl, करेक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, यस, एंड देन एसिडिफिकेशन होगी क्योंकि क्लोरोबेंजीन को हीट करा जाता है, एंड देन आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस will be happen. Next question is like why are haloalkane generally insoluble in water? See, haloalkanes are generally insoluble in water because the energy released when the new attraction formed between the haloalkane and the water molecule is not enough to break the strong hydrogen bond. Explain like breaking the existing bond. Like एक haloalkane के लिए जो energy है उसको चाहिए होगी to overcome the intermolecular attraction. Next, forming the new bond. सबसे पहले breaking होगी, उसके बाद एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होगा, एंड देन एनर्जी डेफिशिएट एज अ रिजल्ट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू वीक इंटरेक्शन इज मच लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द हाईली स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्टिविटी। सो SN1 रिएक्टिविटी के अंदर जो सबसे पहले आएगा वो हमारे पास आएगा मिथाइल is less than 1 degree, less than 2 degrees, less than 3 degree, करेक्ट। मिथाइल का क्लोराइड जो है वो एक मिथाइल का कार्बोकेटाइन बना देगा विच हैज़ नो एल्काइल ग्रुप टू स्टेबलाइज। इथाइल का क्लोराइड जो है वो एक 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाएगा, एंड जो आइसोप्रोपाइल का क्लोराइड है वो एक स्टेबलाइज हो जाएगा 2 मिथाइल के ग्रुप्स के थ्रू, एंड जो टर्शियरी ब्यूटाइल का क्लोराइड है वो हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा 3 मिथाइल के ग्रुप्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल को 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर, सो CH3CH2CH2OH यस प्लस PBr3 यूजिंग द फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3CH3CH2CH2Br प्लस H3PO3, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे CH3CH2CH2OH प्लस HBr, yes, in the presence of the H2SO4 क्या बनाएगा, it will form CH3CH2CH2Br plus H2O, and using the red phosphorus and bromine, अगर हम इसको अगर हम डायरेक्टली रेड फॉस्फोरस, ये तो थर्ड ऑप्शन है, रेड फॉस्फोरस या फिर ब्रोमीन को यूज़ करते हैं, देन इट कैन कन्वर्ट इट इनटू CH3CH2CH2Br, correct. So this is the first option, this is the second, and this one is the third. Okay, so अगर ये वीडियो समझ में आ गई है so please like and share it with your friends, okay, and please subscribe my channel so that आपको ये वाली वीडियोस मिलती रहे। 11th and 12th बेसिकली केमिस्ट्री, एंड 12th की हम लोग करते हैं संडे को, एंड 11th की हम लोग करते हैं सैटरडे को। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।